Hello, class 7th students. How are you? I think students you all are fine. Students, are we are what doing? We are revising the chapter first statement in basic. This chapter question answer you will be completed in your notebook. I know, but revision work is going on. Students, in this revision far and far loop conditions far and far we complete. Far and far we complete. Now today students we are going to complete the revision of while and while. While and while condition today we are going to revise students. Students of class 7th, you must be understand this while and while what or not. If you not understand, then you just listen carefully. Firstly, students, important is this: you are reading this line. If you can read this line, then second thing is you just try to understand what happened in this two line. What happened in this two line? It means what the necessary terms are given in there and what the unnecessary term are given in there. There are two things in this. So necessary terms, when you just go to revise, then you will be understand to do and give the best. Students, in the books you open this and listen carefully what I told here. Students, I told here you just see, when you do not know the loop count beforehand, when you do not know the loop count beforehand, you can use while loop instead of for loop. ठीक है, वो ये कह रहा है कि अगर आपको लूप की जो काउंटिंग की कंडीशन है, ठीक है, वो नहीं मालूम है, तो आप फॉर लूप की जगह पर वाइल लूप का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. कंसीडर द कोड गिवन बिलो. बस आपको ज़रा ध्यान रखना है जो कोड आपको लिखने हैं वो किस तरह लिखने हैं. ठीक है. तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको ज़्यादा नहीं बस ये स्टेटमेंट समझाऊंगा और आप खुद ब खुद वाइल एंड वाइल रूप समझ जाएंगे. ठीक है. स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं मैंने जो है कि लिखा हुआ है यहाँ पर. क्या लिखा हुआ है? बुक में दिया हुआ है पहले से ही. a इज इक्वल टू 5. a बराबर है किसके? 5 के. ठीक है. मतलब a जो मेमोरी वेरिएबल है उसमें 5 स्टोर है. क्या स्टोर है? 5 स्टोर है. सेकंड चीज इसमें क्या है स्टूडेंट्स? सेकंड लाइन ये कहती है वाइल a इज लेस देन आर इक्वल टू 50. a किससे छोटा होगा और किसके बराबर होगा? 50 से छोटा भी होगा और 50 के बराबर भी होगा. ठीक है. देन टेक्स्ट विंडो की लाइन जो है वो ए को छापेगा. राइट लाइन का मतलब ए प्रिंट होगा. ठीक है. और ए में जो कंडीशन लगाई जा रही है कि ए कितना आगे बढ़ेगा, ए इज इक्वल टू ए प्लस 10, मतलब ए में 10 की बढ़ोतरी होगी. कितनी की बढ़ोतरी होगी? 10 की बढ़ोतरी होगी. 10 नंबर इंक्रीजेज विद द each next term of a. Okay students, so you consider this when this program is run. Then what happened? When the program is run, then you just see here, I show you, you will be able to see here students. See, the first a print 5, then increases the 10 15, then increases the 10 25, increases the 10 35, increases the 10 45. It means it is the last term, because you know very well
after the 45 when you add the 10 then number is 55. But here what? Here is only statement says your number is equal to 5 but less than or equal to 50. आपका नंबर 5 से स्टार्ट तो होगा लेकिन ये 50 के बराबर तक जाएगा, न कि 50 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसीलिए जब ये प्रोग्राम रन किया है तो स्टूडेंट्स देख सकते हो आप लोग, आपके सामने ये है कि ये कहाँ से कहाँ तक गया है, 5, 15, 25, 35, 45। ठीक है, यहीं तक गया, इससे ज़्यादा नहीं गया है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यू रिवाइज दिस थिंग एंड आफ्टर दैट you just see here again a program, right? You just see again a program is written here. Write a program to print natural numbers from 1 to 10 in a reverse order using the while loop. ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में हमें देखना है। ठीक है, इट मीन 10 से रिवर्स ऑर्डर में 10 to 1 आना है। देखो कैसे होगा, बहुत इजी है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये कंडीशन आपने पढ़ी कि आपको कोई एक मेमोरी वेरिएबल चाहिए डाटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो आपने एक मेमोरी वेरिएबल ले लिया ए डाटा को स्टोर करने के लिए। उसके बाद जब आपने एक मेमोरी वेरिएबल ले लिया डाटा को स्टोर करने के लिए, उसके बाद से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, चेहरा साफ दिख रहा है ना हमारा, बातें हमको भी देखो और स्टेटमेंट को भी देखो, दोनों चीज़ें देखनी पड़ेंगी तभी जाके समझ में आएगा। स्टेटमेंट ये कह रहा है कि a इज इक्वल टू 10। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, a इज इक्वल टू 10। a किसके बराबर है, a 10 के बराबर है। ठीक है, बट वाइल कंडीशन के साथ समझाया जा रहा है कि a इज लेस दैन आर, a इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 1। a 1 से बड़ा होगा और 1 तक जा सकता है, 1 से नीचे नहीं आएगा ये। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, अब हमें एक प्रिंट ए का फंक्शन लगाना पड़ेगा। तो ये तो टेक्स्ट विंडो राइट लाइन फॉर ए, ये लिखकर आप प्रिंट फंक्शन लगा दिए कि ए रिकॉर्ड प्रिंट होगा। उसके बाद से आपने ए में एक की घटोत्तरी कर दी। ये जो लिस्ट कंडीशन है, इसी कंडीशन पर वाइल लूप आपका डिपेंड है। ठीक है, आपने ए में से एक -1 घटाया और एंड वाइल कर दिया। स्टूडेंट्स होता क्या है, जब इस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करेंगे, रन कराएंगे, तो ऑटोमेटिकली ये 10 to दिख रहा है ना, 10 to 1 वाली लाइन आपको शो कर जाएगी। ठीक है, तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स को समझ में आ गया है कि वाइल एंड वाइल लूप कैसे ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाइए और उसको करके देखिए। आप अपना वो खोलिए, इस बेसिक एप्लीकेशंस जो कंप्यूटर पे लोड किए हैं स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन नहीं मिलता है तो आप गूगल पे जाइए और बेसिक का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद से इस लूप का जो है कि यूज़ करके और मुझे फाइल पिक्चर करके क्लिक करके मुझे सेंड कीजिए, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आज आपने कुछ वर्क किया है। आप लोगों का केवल इतना ही होमवर्क है कि वाइल एंड वाइल लूप का आप यूज़ करके मुझे बता दें। ठीक है, और बाकी की बस एक ग्राफिक्स प्रिंट वाली बची हुई है, उसको हम कल करा देते हैं। तो ये रिवीजन चैप्टर पहला ख़त्म हो जाएगा, फिर सेकंड चैप्टर पर रिवीजन करेंगे क्योंकि पीटी टेस्ट भी आने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। यू डू दिस प्रैक्टिकल, ओके, आप ये प्रैक्टिकल करें। ठीक।